Let's we start with our chapter number 2, where we have stopped from that point. We have studied the pollination agent, the pollinating agents, abiotic. Now we are moving to the biotic agents. So look on the page number 30. Majority of the flowering plants use a range of animals. Look, animals. When it is considered as an animal, it is written as an animal. Students are only focusing on that goats and these dogs, etc. No, complete animal. Animal means all the animals. Insects भी आ गया और सब आ गए. Mammals भी आ गए. So look, pollinating agents are bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds. Example: sunbirds, hummingbirds, and bats. Bats are the mammals. Are the common pollinating agents. Look, many times student आते बोले सर ये वेस्ट कैसा होता है, क्या होता है. Just go for that YouTube, टाइप करो सर्च में वेस्ट, you will find a numbers of its photographs and that all. कोई का भी हो, इसमें तुम कर सकते हो. And bats are the common pollinating agents. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. Highlight करो bees. बोलो, among the animals, insects, particularly bees, honeybees, particularly. Even larger animals such as some primates, lemurs. कैसा होता है lemurs? Primates mammal में आता है. वो हम उसमें करेंगे evolution में. Lemurs, उसको भी सर्च करोगे मिल जाएगा. Arboreal, tree dwelling rodents, उसको भी तुम करोगे. Rodents means those with their pointed teeth. ऐसा पूरा उसको ऐसा एनक्रोच कर करके उसको खाते हैं. उसके क्या कहते हैं, स्टेम कौन है, ट्रंक कौन है, उसको ऐसा अपने वो खाते हैं. और इवन रेप्टाइल्स, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड. गीको लिजार्ड कैसी होती है? गार्डन लिजार्ड तो तुमने देखी होगी, गार्डन में बहुत होती है. गेको लिजार्ड, वंस अगेन गो फॉर दैट यूट्यूब सर्च. Have also been reported as a pollinators in some aspects. Often flowers of animal pollinating plants are specifically adapted for the particular species of the animal. Why that particular animal visit that particular plant and particular flower? So, that animal must have some benefit by that particular plants and particular flowers. तो ही तो वो वहाँ पे आएगा. एज फॉर एग्जाम्पल हनी बीज. वाई हनी बीज विजिट पर्टिकुलर प्लांट और फ्लावर, उसके फ्लावर को? बिकॉज नेक्टर इज प्रोड्यूस बाय दैट फ्लावर. नेक्टर जो भी उसका शुगर कंटेनिंग लिक्विड होता है, तो वो जो प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हनी बीज उसको कलेक्ट करने के लिए वहां पर आएगी. मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज. बोलो, इंसेक्ट्स पोलिनेटिंग फ्लावर कैसा है? ये सब ये आता है, हाँ, लार्ज. अरे भाई लार्ज होगा तो क्या होगा? इजीली इंसेक्ट कैन एंटर इनसाइड. अगर जो वो लार्ज है, इफ इट इज अ लार्ज फ्लावर, ऐसा लार्ज है, तो बोलो यहाँ पे स्टेमेन, पिस्टिल, ये लार्ज है, तो बोलो व्हाट विल बी हैपन? इंसेक्ट कैन इजीली एंटर हियर. So purpose of the pollination will be survive, fulfilled. कलरफुल होएगा तो ही तो वो अट्रैक्ट होएगा. फ्रेगनेंट, अच्छी उसमें स्मेल होनी चाहिए. एंड रिच इन नेक्टर. When the flowers are small, the numbers of the flowers are clustered into the inflorescence to make them conspicuous. बोलो क्या होता है? अगर जो ये फ्लावर कोई के अंदर छोटे छोटे, so not only one flower but numbers of the flower will be there. So what will be happen? Numbers of the flower is present in this inflorescence. So when insect come here, तो कोई तो फ्लावर का छोटा है, तो कोई तो फ्लावर का क्या होगा, उसको
पोलन मिल जाएगा, कोई के ऊपर वो दूसरे पे से पोलन लाया वो ड्रॉप हो जाएगा, मिसपोलिनेशन ओवर होएगा। Animals are attracted to the flowers by color. Attracted by the flowers are color and fragrance. दोनों से या कोई एक से। The flowers pollinated by flies and beetles secrete the foul odors to attract them animals. Highlight करो foul odor. अच्छी नहीं होती, bad smell. It is bad for us, but it is attracted. उसको फ्लाइज को ने उसको तो अच्छी लगेगी, वाह वाह बहुत अच्छा आएगा। To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animal. उसको कुछ देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी आ जाएगा, ले भाई कुछ लेकर जा। और वो लेने के लिए, रिवॉर्ड लेने के लिए ही वो इंसेक्ट आता है वहां पर। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरस रिवॉर्ड्स। कौन सा है? नेक्टर एंड पोलन। जब वो इंसेक्ट यहाँ पे आता है, व्हेन इट कम हियर, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। काय का रिवॉर्ड मिलता है? नेक्टर का और पोलन का, दोनों का। In the flowers, animals visitors comes the flowers. The animal visitors comes to the in contact with the anthers and stigma. The body of the animal gets a coating of the pollen grains. बोलो, जब वो एनिमल अंदर एंटर हो जाता है इंसेक्ट, तो वो उसका जो भी एंथर है, एंथर पे से पूरा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पोलन आ जाएगा। पोलन ग्रेन्स का इतना सब डस्ट पोलन आ जाएगी कि वो पूरा जैसे उसे कवर हो जाएगा। Which are the generally sticky in animal pollinating flowers? Highlight करो, pollens are sticky in animal pollinating flower। क्योंकि वो sticky है तो क्या होएगा? वो pollen grain sticky है, तो जब जैसे ही वो उसके ऊपर गिरेगा, किसके ऊपर? एनिमल पे, तो एनिमल के बॉडी से स्टिक हो जाएगा। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about the pollination. In some species, floral rewards are in providing safe places by lay eggs. An example of that is the tallest flower, the Amorphophallus. The flower of this itself is a 6 meter in height. बोलो, sorry, 6 feet in height. Amorphophallus का पूरा फ्लावर ही 6 फीट का होता है, तो क्या होएगा? इजीली एनिमल अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ना, फीमेल एनिमल उसमें एग्स भी ले करेगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, उसके एग्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा सब होता रहेगा। मीन्स एनिमल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो उसका पोलिनेशन सक्सेस होता रहेगा। A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca. युक्का कैसा होता है वो सर्च कर लेना गूगल पे। Are both species, moth and the yucca, cannot complete their life cycles without each other. उनकी लाइफ साइकिल का रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करने के लिए युक्का को मौत चाहिए, और मौत का उसको खुद की लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन ओवर करने के लिए युक्का चाहिए। अगर जो आपके वहाँ पे युक्का है बट मौत नहीं है, तो युक्का में पोलिनेशन होगा ही नहीं, और वो ऐसे ही मर जाएगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ में आता है? और अगर जो मौत है बट युक्का नहीं है, तो मौत के भी रिप्रोडक्शन फेल जाएगा। बिकॉज लाइफ साइकिल इज इंक्लूड फ्रॉम द प्लांट होगा तो सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट करके वो डेवलप होगा, डेवलप वेजिटेटिव फेज ओवर होने के बाद में उसका जो फ्लावरिंग स्टेज आएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज में उसका पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फ्रूट डेवलप होगा, सीड डेवलप होगा। वो सीड डेवलप होकर डिस्पर्स होगा सीड, वहाँ तक का वो है, क्योंकि नेक्स्ट वंस अगेन वो सीड का क्या होगा? जर्मिनेशन, वो न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो बोलो कुछ ना कुछ स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स हियर तो रिप्रोडक्टिव स्टेज ही स्टॉप हो जाएगा, एनिमल में भी और प्लांट में भी, तो दोनों के लिए वो नेसेसरी है। The moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turns get the pollinated by the moth। बोलो क्या होता है? सपोज ये युक यहाँ पे ही हम ड्रॉ करते हैं। लुक, दिस इज द pistil, ovary, ये क्या है? व्हाट इज दिस? एम्ब्रियो सेक वाला पार्ट, ओव्यूल। अब ये ओव्यूल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ।
बोलो यहाँ पे एम्ब्रियो से के उसके जो भी सब कुछ है वो, बोलो ये यहाँ पे आया, बट ये सब पार्ट तो एम्प्टी है, लोक्यूल है। तो वो एनिमल क्या करता है, खुद के एग्स यहाँ पे ले करता है, अंदर तक जाता है। तो डायरेक्ट बोलो, अगर जो वो एनिमल हैज ब्रॉट, इट हैज ब्रॉट व्हाट, पोलन, तो पोलन डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगी। व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड हियर, तो वो यहाँ का जो मेल पार्ट है उसके उससे पोलन लेके दूसरे में जाएगा। In turn case the pollinated, the larva of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. जब यहाँ से लार्वा बाहर निकलेगा तो वो पहले से पोलिनेटिंग था, तो बोलो क्या, जब फीमेल आया अंदर ले एग्स करके गया, तो यहाँ पे ये फर्टिलाइज एग्स भी है, यहाँ पे पोलिनेशन भी हुआ, यहाँ पोलिनेशन होके ये सीड वीड सब कुछ जो कोई अभी हम स्टडी करेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, यहाँ पे डेवलप हुआ, तो यहाँ पे भी ये डेवलपमेंट है, वहाँ तक ये लार्वा भी डेवलप हो गया। लार्वा डेवलप हो गया तो लार्वा बाहर निकल के उड़ के चला गया और ये यहाँ पे अंदर सीड बन गया। Why don't you observe some flowers in the following plants or any others available surrounding you? Cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. हमारा कुछ मिलना भी तो चाहिए। सराउंडिंग में जाओगे तो खाली बड़ौदा में तो क्या मिलता है, रोड ही मिलते हैं। Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. अगर जो एनिमल्स वहाँ पे आते हैं तो वो पोलिनेटर्स है कि ऐसे ही आया है। You will have to patiently observe the flowers. There are for the few days and at the different types of the day. You could also try to see the whether there is any correlation of the characters of the flower and the animal that visit it. Carefully observe if any visitors come to the contact with the anthers and stigma, as only such visitors can bring about pollinations. क्यों? अरे भाई एट्रैक्टिव कलर है, नेक्टर से, तो क्या होगा, नॉट ओनली दैट पोलिनेटिंग एजेंट ही आएगा, दूसरा भी कोई एनिमल आके वो नेक्टर को खाने के लिए आ जाएगा एट्रैक्ट होके। सच फ्लोरल विजिटर्स आर रिफर टू एज अ पोलन नेक्टर रोबर्स। हाईलाइट करो, पोलन नेक्टर रोबर्स, रोबरी करते आके। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोलिनेटर्स, बट यू विल श्योरली एंजॉय दिस एफर्ट्स। हमारे यहाँ कुछ मिलने का नहीं है, सयाजी बाग कमाटी बाग में जाके नेट करने का थोड़ा बहुत देखने की कोशिश, अलग अलग दिन नंबर्स ऑफ टाइम जाना पड़ेगा, किसके पास इतना टाइम है। चलो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को पूरा टिक कर दो, राइट IMP, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Majority of the flowering plants produce a hermaphrodite flowers. Hermaphrodite, bisexual, male and female both are together. And pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. जिसको हमने क्या बोला था, वो ही उसके ऊपर आएगा ने वो करेगा। तो देखो उसको हमने बोला था ऑटोगेमी, पेज नंबर 27-28 पे आगे आएगा ऑटोगेमी। देन सेकंड वन, same plant but different flower, heterogamy, and different plant, xenogamy. Pollen grains are likely to come in contact of the stigma of the same flower, means autogamy की possibilities है, because it is a hermaphrodite, means look, this is a female pistil, and here this is the male. Both are the present in the same flower. So what will be happen? Definitely from here whatever pollens are there, it will come over here. Continued safe pollination result in inbreeding depression. Highlight करो inbreeding depression. सपोज हियर इन ब्रीडिंग हुआ, वही के वही फ्लावर में हुआ तो इन ब्रीडिंग बोलेंगे, वो सेम प्लांट के भी फ्लावर में हुआ तो भी इन ब्रीडिंग। तो वन जनरेशन में इन ब्रीडिंग हुआ तो फर्स्ट जनरेशन का जो सीड आया उससे नवा प्लांट आया, उसमें भी इन ब्रीडिंग हुआ, उसमें से सीड आया तो वापस इन ब्रीडिंग हुआ। तो कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन विल लीड्स टू फॉर्म
वीक जनरेशन, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स के वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल, वेरिएशन न्यू एडेप्टेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाईलाइट करो, बाजू में लिखो, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन वीक जनरेशन, वीक प्रोजेनी और न्यू जनरेशन। Flowering plants have to develop too many devices to discourage self-pollinating and to encourage cross-pollination. तो ये जो डिवाइसेस है उसको ने बोलेंगे क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग नहीं, आउटब्रीडिंग, दूसरे प्लांट के वाले फ्लावर के साथ। In some species, pollen release the stigma and stigma respectively are not synchronized. क्या होता है? Pollen and stigma are not synchronized. What do you understand by it? बोलो, pollen and stigma are not synchronized. So look, this is the hermaphrodite flower. ये इसका स्टिग्मा है, मीन्स पिस्टिल है, पिस्टिल का स्टिग्मा आएगा यहाँ पे, ये हैगा। बोलो, व्हाट विल बी हैपन, जब ये मैच्योर हुआ है तो दिस पार्ट इज नॉट एबल टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स, सो डेफिनेटली यहाँ से इंसेक्ट से एयर से जो भी पोलन रिलीज हुई है वो जाएगी तो दूसरे प्लांट पे जाएगी। दूसरे प्लांट में मैच्योरेशन टाइम थोड़ा पहले से आ गया था, तो उसमें वो टाइम पर अपने बोलो क्या था, व्हाट वाज देयर, जब इसका पोलन निकला एट दैट टाइम उसका जो स्टिग्मा था वो मैच्योर नहीं था, तो ये पोलन चला गया। बट यहाँ का पोलन आया जब ये बाद में ये मैच्योर हुआ तो वो वहाँ पे सेटल होगा। समझ में आया? अब बोलो, इसका पोलिनेशन पोलन ग्रेन का टाइम ओवर हो गया ये एंथर का, तो बोलो क्या होएगा, वहाँ तक थर्ड प्लांट में बोलो फ्लावरिंग स्टार्ट हुआएगा तो वहाँ का पोलन यहाँ पे आएगा। और इट में पॉसिबल के बोलो ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज देयर, ये पोलन अभी मैच्योर नहीं हुआ है बट डे स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, तो दूसरे प्लांट में जिसमें पहले से बोलो ये मैच्योरेशन आ गया था तो उसमें अब अपने बोलो क्या आएगा, ये तो ओवर हो गया है बट इसका ये पोलन आया तो पोलन इस पे आएगा। फिर ये जब इसका सब प्रोसेस ओवर हो गया तो इसका पोलन जब रिलीज होएगा तो कोई दूसरे प्लांट पे जाएगा। इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड इन सेम दोनों एक साथ पे नहीं होते। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of the pollen। दोनों को ये पूरा सेंटेंस टिक कर दो, बाजू में क्वेश्चन मार्क कर दो। In some other species, the anther and the stigma are placed at a different position so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। देखते क्या होता है, ये जो है पूरा फ्लावर है, बोलो पूरा फ्लावर है तो क्या हुआ, यहाँ का बोलो दिस क्या, ये एंथर का पार्ट पूरा ऐसा बाहर आ गया। सो डेफिनेटली पोलन ग्रेन यहाँ से ही चला जाएगा, एयर से भी जाएगा। मैनी टाइम वो जब वो इंसेक्ट आता है तो ऐसा रब होके आता है, वो सब होता रहता है। Both these devices prevent the autogamy. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. This is the genetic mechanism to prevent self-pollination from the same flower or other flowers of the same plant. Means देखो, अभी तक हमने जो सोचा, जो whatever we have discussed, that is it is to stop autogamy. But geitonogamy तो हो सकता है, क्यों? ये जो ये पोलन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो सेम फ्लावर में नहीं आएगा, बट यही प्लांट के दूसरे
फ्लावर के स्टिग्मा पे तो वो रिसीव हो सकता है। मिस ऑटोगेमी स्टॉप हो सकती है, गिटोनोगेमी नहीं हो सकती। तो ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करना है, एंड टू प्रिवेंट ओनली जेनोगेमी। तो क्या होता है बरोबर समझना, दोनों एक सिंक्रोनाइज है, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हुए। एनिमल से के विंड के कोई से भी बोलो, यहाँ का पोलन आया तो यहाँ का पोलन आता है तो ये अपने पोलन यहाँ पे आता है, तब क्या होता है, पोलन ग्रेन में से ऐसा कुछ लिक्विड निकलता है, केमिकल फ्यू मॉलिक्यूल्स। इट ट्राई टू आइडेंटिफाई इसके लेयर्स को कि यहाँ का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन खुद के साथ मैच होता है कि नहीं। मैच होएगा तो वो पोलन ट्यूब को डेवलप ही नहीं करेगा। क्यों मैच होगा, यही प्लांट का पोलन है, मीन्स इसके जो जीन्स है वही यही है, यही प्लांट का ये स्टिग्मा है तो उसके भी जीन्स वही है, जीन्स आर सेम तो प्रोटीन भी सेम ही प्रोड्यूस होंगे, तो इसका भी प्रोटीन सेम है। तो जब यहाँ पे व्हेन इट प्लेस हियर तो दोनों के प्रोटीन सेम हुए, दोनों के सेम प्रोटीन रिएक्ट नहीं करते, दे आर नॉट रिएक्टिंग, सो पोलन ट्यूब विल नॉट डेवलप। बट सपोज कोई अपने बोलेगा सर वही फ्लावर में नहीं हुआ तो यहाँ दूसरा फ्लावर है, अरे भाई दूसरा फ्लावर है बट प्लांट तो वही रहेगा, तो यहाँ से पोलन आया यहीं आया तो बोलो वट एवर जीन्स विल बी सेम बिकॉज द सेम प्लांट, सो गिटोनोगेमी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट वेन दिस मूव टू अदर प्लांट तो क्या होगा, दोनों के थोड़े सम लिटल बिट जीन्स आर डिफरेंस, सो सम ऑफ द प्रोटीन आर द डिफरेंशिएटेड, सो बेसिस ऑन द डिफरेंस ऑफ द प्रोटीन जेनोगेमी इज पॉसिबल। तो बोलो फर्स्ट टू हमने जो देखा उसके अंदर ऑटोगेमी प्रिवेंट होता है बट गिटेनोगेमी नहीं होता है, और ये थर्ड है उसमें क्या होता है, ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट होकर ओनली जेनोगेमी होता है। Either the pollen is the release before, both these devices, the third device to prevent the inbreeding is self incompatibility। सेल्फ खुद के साथ compatibility नहीं है। This is the genetic mechanism and prevents the self pollen from the same flowers or the flowers of the same plant, means autogamy and gitonogamy. From the fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination or the pollen tube growth in the pistil. Anthus devices to prevent self pollination is the production of the unisexual flower। अब बोलो दूसरा सेम, ये सब नहीं है तो बोलो एक सेम मेथड है, क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नॉट बाइसेक्सुअल फ्लावर, अनदर मेथड है। बोलो यहाँ पे ऑन दिस प्लांट ओनली male flowers, on this plant only female flower। बोलो these are the male and these are the female flower, बोलो फीमेल फ्लावर यहाँ पे है तो बोलो मेल फ्लावर तो पोलन यहाँ जाएगा तो भी ऑटोगेमी के गिटोनोगेमी तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पोलन आता ही नहीं है तो ऑटोगेमी, खुद का ही पोलन नहीं आता तो क्योंकि पोलन प्रोड्यूस है तो ऑटोगेमी गिटोनोगेमी नहीं है, ऑलवेज इट टर्न्स टू जेनोगेमी। This is one method। चलो सेकंड विच वी कैन ऑब्जर्व इन दैट ऑफ द मेज। मेज के कॉम में ऊपर के जो रहते हैं वो मेल फ्लावर रहते हैं और नीचे के साइड पे जो रहते हैं वो फीमेल फ्लावर लेते हैं। ऊपर मेल है और नीचे सब फीमेल है। बोलो इसमें क्या ऑटोगेमी नहीं है बट गिटोनोगेमी हो सकता है। जब दोनों प्लांट अलग अलग है, नॉट ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट यूनिसेक्सुअल प्लांट आर ऑल्सो देयर, दिस इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट द बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बोलो इसमें क्या होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट ही है पूरा, सो इट इज ओनली जेनोगेमी। यहाँ पे गिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी बोट, क्यों जेनोगेमी, यहाँ से आके दूसरे पे भी जा सकता है जेनोगेमी, यहाँ से आके इसके ऊपर आया तो गिटोनोगेमी, बट ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल। द another device to prevent the self pollination is the production of the unisexual flowers। If both male and female flowers are present on the same plant such as the castor and maize, that is called monoecious। मोनो वन, एक ही प्लांट पे दोनों टाइप है मेल फीमेल, मोनोसियस।
इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी। बोलो ये मोनोसियस हुआ मेज ने, उसमें कैस्टर में गिटेनोगेमी हो सकता है। In several species such as papaya, male and female flowers are present on the different plants. That is, each plant is either male or the female. That is called dioecious. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. Now look, pollen pistil extraction. Pollination does not guarantee that the transfer of the right type of the pollen, compatible pollen on the same species as the stigma. Means यहाँ पे X टाइप ये प्लांट है, द प्लांट इज अ X स्पीसीज, इसका ये फ्लावर है। इंसेक्ट, वो इंसेक्ट ने यहाँ पोलन रिसीव करा एंड इमीडिएटली बोलो कोई उसके ऊपर गया, दूसरे प्लांट पे गया, बट इट इज अ वाई टाइप, वाई स्पीसीज, व्हाट विल बी हैपन? पॉलिनेशन फेल। बट पता कैसे चलेगा? उसको बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इट में भी कि वो इसके ऊपर आया, तो वो भी कैसे पता चलेगा? दैट टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्पीसीज एंड नॉट इवन द स्पीसीज, पर्टिकुलर खुद का ही प्लांट पे से वो पोलन आया है कि दूसरे पे से आया है, उस वो जो आइडेंटिफाई करना है उसको। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of the pollen. Often pollen of the wrong type, either from the other species or from the same plant, cell incompatibility करने के लिए। Also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. पोलन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? पिस्टिल। अभी हम समझते हैं ये एक्स टाइप का प्लांट है, उसका ये फ्लावर है। बोलो यहाँ पे वाई स्पीसीज फ्लावर टाइप का प्लांट है, उसका ये फ्लावर है। बोलो यहाँ से पोलन निकला, पोलन निकला तो बोलो ये पिस्टिल पे आया। दिस पिस्टिल हैज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि ओ ये तो मेरे ही फ्लावर का है, क्या पोलन, तो उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, रिसीव ही नहीं करेगा। रिसीव हो जाएगा उस पर सेट, बट रिसीव का मतलब ऐसा नहीं कि वो जाके उसके बाद सेट हो गया, आगे का प्रोसेस होएगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब एसेट्रा, तो फिर उसको ना बोलेंगे रिसीव करा है। बोलो ये एक्स टाइप का निकल के बोलो वाई टाइप पे गया। एज फॉर एग्जाम्पल, रोज में से पोलन निकल के जैस्मिन में गया, तो क्या होएगा? ये पोलन यहाँ पे सेट हुआ तो भी क्या होएगा? वो उसको रिसीव नहीं करेगा, वो खाली उसके ऊपर गिरा, उसको रिसीव नहीं बोलते, उसके आगे प्रोसेस होना चाहिए। बोलो यहाँ पे दूसरा है एक्स टाइप का ही प्लांट है, तो क्या होगा? ये इसको रिसीव करेगा, हो गया। और तो बोलो खुद के ही फ्लावर का आएगा तो रॉन्ग टाइप, खुद के ही प्लांट का आएगा तो भी रॉन्ग टाइप, बट इफ इट इज फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट इट इज द राइट टाइप। If it is of the right type, the pistil accept the pollen and promotes the post pollination events. बोलो वो जो राइट टाइप आया तो वो अपने क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा नहीं, क्या अपने प्रोसेस होंगे? पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, यानी पोलिनेशन के बाद में जो होता है वो क्या होता है समझते हैं। It leads to the and then it leads to the fertilization. If the pollen is of the wrong type, the pistil reject the pollen by preventing the pollen germination on the stigma. Pollen का germination ही नहीं होने देगा। On the pollen tube growth in the style, यानी pollen tube का growth ही नहीं होएगा स्टाइल में। अभी हम फिगर पे समझते क्या होता है। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result in continuous डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। डायलॉग यानी हम जो बोलते हैं उसको, ये नहीं, ये केमिकल डायलॉग है कि उसमें से ऐसा केमिकल रिलीज हुआ कि जो पोलन का केमिकल और पिस्टिल का मिस्टिग्मा का केमिकल दोनों सेम टाइप आया, तो उसका डायलॉग नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ, यानी डायलॉग नहीं हुआ। अगर दूसरे प्लांट का आया तो उसके ऊपर रिएक्शन होगा, मीन्स डायलॉग हुआ।
दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स. बोलो, लिखा हुआ है दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोजर्स. अब लास्ट टाइम ओल्ड कोर्स में ऐसा लिखा हुआ नहीं था, तो ये एक आया था, सर ये डायलॉग कौन सी लैंग्वेज में होता है. प्लांट की कोई स्पेशल लैंग्वेज होती है, जैसे रशियन है, फ्रांस फ्रेंच है, ये गुजराती है, इंग्लिश एंड दिस और नॉट, दैट इज वन काइंड ऑफ द केमिकल का रिएक्शन होता है, डायलॉग हुआ. It is the only in the recent year that the botanist. This dialogue is mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in the recent year the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance of the rejection. અને સાયન્ટિસ્ટ સક્સેસ हुए वही. As mentioned earlier, following competitive pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grains move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissue in the stigma and the style and reaches to the ovary. You will recall that in the pollen grains are said two cell condition, a vegetative cell and generative cell. In such plants, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth pollen tube in the stigma. In plants we said the pollen in the three cell means pollen tube carry the two male gametes and the beginning pollen tube after reaching the ovary. हाँ चलो वो बाद में मैं पूरा कंटिन्यूस यहाँ पे समझाता हूँ. Look what happen. बोलो मेल gametophyte. In male gametophyte we have studied what here. This pollen mother cell का जो भी pollen tetrad बना हेप्लॉइड, ये सब सेपरेट हुए मीन्स 4 एवरी, उसमें से 4 पोलन ग्रेन बने. दिस पोलन ग्रेन हैज द हेप्लॉइड न्यूक्लियाई. ये पोलन ग्रेन इमीडिएटली डिवाइड होता है, वन जनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल. वन जनरेटिव सेल, वन वेजिटेटिव सेल. जनरेटिव सेल स्मॉल, वेजिटेटिव स्मॉल, nucleus is large. Generative cell, this is two celled. Male gametophyte, development of the male gametophyte. While in some, there are the some chances that what happen. बोलो यहाँ से पोलन ग्रेन में से टेट्राड बना एंड दोज पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस. तो जब पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ, सॉरी अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ, रिलीज नहीं हुआ, अभी सेट नहीं हुआ. One generative cell, one vegetative cell. One generative cell, one vegetative cell. One generative cell, one vegetative. This is the vegetative cell. This is the generative cell. अरे यार उसको साइड पे रखो. बोलो ये vegetative cell and generative cell सब आ गए. But many time what happen? These generative cell also divide to form two male nuclei. Means 3 cell बने. ये जो 3 सेल बनता है उसका बहुत प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम समझते हैं. ये 2 सेल स्ट्रक्चर, वन जनरेटिव, वन वेजिटेटिव. लुक दिस इज द पिस्टिल. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी एज ओव्यूल्स. This is embryo sac, synergids and female gamete. This here antipodal cell. Okay. बोलो when this said pollinating हुआ तो बोलो when it said it has the 2 cell, one generative cell and one vegetative cell. अब यहाँ पे आया before it we should be clear with that. It has the every pollen grain has the 2 layer bilayer cell wall. outermost is exine, intine exine. ये generative cell, this is the vegetative cell. And we know that exine has some area where thickening means exine is not there. This is called as a germ pore. चलो यहाँ पे जब ये सेटल हुआ तो
उसके ये पिस्टिल के ये अपने पार्ट के नियर और जो भी जंप और रहेगा वो जंप और में से यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। एज दी पोलन ट्यूब जर्मिनेट, तो बोलो आगे जाएगा वेजिटेटिव सेल और पीछे इसमें एंटर होएगा ये क्या? जनरेटिव सेल। बोलो जैसे ये अंदर आगे अपने जाएगा व्हाट विल बी हैपन? स्लोली दिस वेजिटेटिव सेल विल बी डीजनरेट एंड दिस जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स। जो ऑलरेडी बोलो 3 सेल स्ट्रक्चर में मेल गैमेट थे। अब कितने स्टूडेंट पूछते हैं सर 3 सेल स्ट्रक्चर आया तो क्या होगा? इट इज वेरी इजी। जनरेटिव सेल आगे जाएगा, सॉरी वेजिटेटिव सेल आगे जाएगा ना, दोनों मेल गैमेट पीछे जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मेल गैमेट बन गए। अगर जो मेल गैमेट नहीं बना है तो वो यहाँ पे मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा। अब बोलो यहाँ से ड्यू टू बाय सम केमिकल अट्रैक्शन दिस पोलन ट्यूब स्लोली एंड स्लोली मूव टू हियर टू जंपोर। सॉरी जंपोर में से सॉरी पोलन ट्यूब आया, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होएगा। कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आएगा तो अब देखो मैं इतना ही यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वो बुक की फिगर है बट समझने के लिए ये फिगर, ये एम्ब्रियो सेक में दीज आर द सिनर्जिड्स। सिनर्जीज एट द फिलिप एंड फिलिफॉर्म एपरेटस एंड दिस इज द फीमेल गैमेट। दिस इज सेकेंडरी सेल, एंटीपोडल सेल। बोलो यहां से ये आया पोलन ट्यूब। बोलो ये पोलन ट्यूब यहां पे आई, केमिकली अट्रैक्ट होके आई है। ये पोलन ट्यूब आ गया, मैंने ड्रॉ नहीं करी। व्हाट हैपन? जैसे ये मेल गैमेट यहाँ आया, दिस मेल गैमेट में एंटर आइदर इन दिस सिनर्जीज और हियर, कोई एक में जाएगा और उसके फिलिफॉर्म एपरेटस पे जाएगा। फिलिफॉर्म एपरेटस पे जैसे ही गया, लोग ये मेल गैमेट इस पे अपने गया कि वो ऐसा स्प्रिंग की तरह खुलेगा, तो वो मेल गैमेट एक पुश होएगा फीमेल गैमेट पे एंड सेकंड जाएगा यहाँ बीच में सेकेंडरी सेल पे, 2 मेल गैमेट्स। तो फिलिफॉर्म एपरेटस पे आया, ऐसा स्प्रिंग की तरह उसने जंप कराया उसको, तो एक मेल गैमेट यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया। Pollen tubes carry 2 male gametes from the beginning. Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and enters one of the synergids. कोई भी एक synergy में जाएगा। तो स्टूडेंट कितने बोलते हैं सर why there are two synergy? अरे मेल गैमेट है, मैं भी थोड़ा ऐसा क्रॉस जाएगा, थोड़ा ऐसा क्रॉस जाएगा, तो बोलो 2 सिनर्जीज रहेंगे, तो ऐसा क्रॉस जाएगा तो इधर भी रिसीव होएगा, ऐसा क्रॉस जाएगा इधर भी रिसीव होएगा। Through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that the filiform apparatus present in the micropylar part of the synergies guides the entry of the pollen tube. वो पोलन ट्यूब ने इसको ना गाइड करता है कि यहीं पे जाओ, यहीं पे, पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब नहीं, किसको? पोलन ट्यूब नहीं, परंतु किसको? मेल गैमेट को। बट रिसेंट स्टडी ऐसा आपने करता है कि जो मैंने बोला ना कि ये पोलन ट्यूब एग्जैक्ट यहाँ माइक्रोपाइल एंड पे ही आएगा। क्यों माइक्रोपाइल एंड पे भी आया, एंड पे आया, साइड पे नहीं गया? उसके लिए भी ये सिनर्जीज है, वो रिसेंट स्टडी है। All these events from pollen deposition on the stigma until the pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. क्या बोलेंगे इसको? pollen pistil interaction. ये पोलन आया, पोलन आइडेंटिफाई हुआ, राइट टाइप पे फिर जंप ऑन में से पोलन ट्यूब डेवलप हुआ। अगर जो उसमें जनरेटिव सेल है तो उसमें से डिवाइड होके मेल गैमेट बना। जनरेटिव नहीं है 3 सेल है तो दोनों मेल गैमेट उसके पीछे आए, और 2 सेल है तो भी मेल गैमेट बन के आए। फिर यहाँ आया, यहाँ पे माइक्रोपाइलर पे अट्रैक्ट होके आया, वहाँ से फिलिफॉर्म एपरेटस पे गया, वहाँ से वो जो कुछ हुआ वो सब, इसको हम बोलेंगे पोलन पिस्टिल एट्रैक्शन। सेट होना, राइट टाइप होना, वहाँ से वो पूरा। As pointed out earlier, pollen pistil attraction is the dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibiting of the pollen.
प्रमोशन भी हो सकता है, इनहिबिटिंग भी हो सकता है। इनहिबिटेड होएगा तो आगे का भी प्रोसेस ही नहीं होगा। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प the plant breeder in manipulating plant pollen pistil interaction even in incompetitive pollination to get the desired hybrid बनाना है वो सब करना। अगर जो उसका राइट टाइप नहीं है तो भी उसके साथ कराना, उसका ये सब नॉलेज उसमें आता है। यू कैन इजीली स्टडी दिस, ये यू कैन इजीली यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।